Hello everyone. Today we have our very special guest Rakshit Soodji, who is a dedicated development practitioner currently serving as a program specialist enterprises for the Aga Khan Rural Support Program, commonly known as AKRSP. And he is currently based in Gadu, Gujarat. In his capacity, he focuses on entrepreneurship development and the creation of sustainable rural businesses, especially by fostering the ecosystem that support micro and nano enterprises and ecosystems, and also at a very grassroots level. So he is currently in a village in Gadu, and he is serving the community by building up the entrepreneurship culture over there. His professional journey is characterized by a diverse range of leadership and consultancy roles, including the livelihood and resource management. So he previously served as a program officer with Friends of Women's World Banking, FWWB, where he managed livelihood promotion activities, resource mobilization, and project budgets. And then sustainability and operations at the Self Employed Women's Association, I guess, SEWA, right? In the Ahmedabad. So he managed the supply chain and operation for plastic waste value addition, e-waste management, and then he also did some kind of a work in the sector with foundational experiences in field foundations. He was also an ex-fellow of SBI Youth for India Fellowship. So he has got an extensive experience. His background is also very interesting because he has shifted from forensic science and technology to development studies. So, welcome, sir. Welcome, Sonuji. And thank you for being in this podcast. This is our episode 3 of Decoding India's Social Sector. I welcome you humbly to this podcast. And hopefully, the discussion which we are going to have is going to benefit a lot of people, especially the youth who are trying to navigate or trying to understand the development sector and wanted to make a career. Thank you, Pritham. Thank you for the nice and really long introduction, but I'm still learning. And it is a really good initiative that you have started, and I'm glad to be part of that. So, so you hold a Master of Arts in Development from Azim Premji University, but you Yes. transition from forensic science and technology, right? So this Yes. becomes very interesting in the sense why you have chosen development studies and what was your experience before. Can you can you give us some brief idea about your educational experiences and background? Let me be like, I'll be explaining it in a language that would be easy for me to explain because I'll be able to tell the Sure. story from my heart. So Right. जब मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था, मैं प्योर अप्लाइड साइंसेस का स्टूडेंट था। फॉरेंसिक्स ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बहुत ग्रिम है और बहुत ज्यादा थोड़ा डार्क स्पेस है काफी लोगों के लिए, क्योंकि कभी ज्यादा उसको एक्सपोजर होता नहीं है, लोगों को पता भी नहीं होता कि उस फील्ड में होता क्या है, क्या क्या चीजें चलती हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल भी देंगे तो सीआईडी याद आता है हम लोग, तो वो सीआईडी गंजा डॉक्टर वही याद आएगा, और वही सारी चीजें वो लोग सोचते हैं कि वही चलेंगी। मगर अगर आप रियलिटी में देखो तो फॉरेंसिक्स में बहुत सारी चीजें इन डेप्थ में पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स कवर होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। तो उसी के दौरान जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, तो हमारी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे एमएचआरडी की तरफ से, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था एमपी में, एमएचआरडी की तरफ से एक बेसिक सा प्रोग्राम आया जहाँ पे नियर बाय विलेजेस में, मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव है, वहाँ पे जाके बेसिक लेवल का सपोर्ट, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ एंड सैनिटेशन अवेयरनेस का था हमारा काम। हमारा ऐसा था कि ट्रेनिंग्स और बेसिकली उनको किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करना, वो हमारा काम रहता था। तो स्टूडेंट्स वॉलंटियर करते थे, हम लोग भी जाते थे। उस टाइम पे इंटरेस्ट आना चालू हुआ कि ये सेक्टर है क्या, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि अब डेवलपमेंट जो है वो बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है। आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और होगी। गाँव के आदमी के लिए डेवलपमेंट के मायने ही अलग होते हैं। सही है। उनके लिए जैसे हम लोग सोचते हैं कि सड़क बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, उनके लिए वो पहले वो प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए पहली प्रायोरिटी थी बेसिक नीड्स, कि हमें खाना मिल जाए, काम मिल जाए, थोड़ा बहुत बेसिक हमारी सुविधाएं हो आसपास, बाकी तो हम कर लेंगे। क्योंकि अब सिस्टम पे उनको इतना ही भरोसा रहता है, वो बोलते हैं बाकी तो हम खुद ही कर लेंगे, इतनी इतनी चीजें हमारे को अवेलेबल हो जाए, उनके लिए वही डेवलपमेंट है। तो वहां पे आपको जो डिफरेंस दिखता है, तो वो काफी आपको एक तरीके से, मेरे लिए तो क्यूरियोसिटी वाला था कि करंटली मैं ऐसी फील्ड में जहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता है, या तो ये या तो वो, सिंपल होता है, वो इन बिटवीन कोई ग्रे जोन नहीं होता फॉरेंसिक्स में। तो जब इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चालू किया, तो इसमें इतने सारे ग्रे एरिया से कि समझ में नहीं आ रहा था कि पहले ये इसको पकड़े हैं, इसको पकड़े हैं, किस किस चीज को समझे, क्योंकि बहुत सारी रियलिटी थी जो समझना जरूरी था। तो मैंने डेवलपमेंट चूज किया, उसके बाद देखा कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ जगह कोर्सेज हैं।
आपने फॉरेंसिक से हट के ये चूज़ किया क्यों? वो मेन क्वेश्चन वही वो हो जाता मेरे है। लिए वो था कि जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं गाँव देहात में जाया करता था उस टाइम पे वॉलंटियर के तौर पे, तो ऐसा था कि फॉरेंसिक्स में भी हमारा एम तो ये था कि आगे तो हम वहाँ भी कोई ऐसा नहीं था कि आप अगर अपना ही वो देखो लाइफ टाइम कोई आपको कितने फॉरेंसिक्स वाले मिले होंगे या आपको ऐसा देखा होगा कोई लाइमलाइट में है, कोई ऐसा है, वैसा है, तो वो एक तरीके से सर्विस वाला ही करियर होता है। आप पीछे से काम करते हो और वहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये होता है कि सिर्फ आप जस्टिस सिस्टम के लिए काम करो, जो आपके पास लेटर आ रहा है उसी के हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन फीड करके देते हो। सबसे पहला ये था कि जो वो एकदम से कुछ चीज़ें हिट करती हैं ना कि मैं तो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहा था। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, फैमिली में सारे जितना भी फैमिली ट्री है अभी तक सब सरकारी नौकर रहे हैं। किसी चीज़ की हम लोगों को वैसे कभी कमी देखी नहीं और अच्छा खासा बैकग्राउंड था। तो जब वो वैसी चीज़ों से आपका वो पड़ता है, तो एक बारी आपको समझना पड़ता है ना कि देखें कैसे। तो हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट भी था, हम वहाँ भी जाना चालू किया कि धीरे-धीरे उनके भी सेमिनार्स होते थे वीकली। हमने बोला चलो वहाँ भी बैठ के देखते हैं क्या-क्या समझ में आता है। आता तो कुछ नहीं था, जितना है उतना समझते थे। तो मेरा सबसे पहले वो रहा कि एक तो ये क्यूरियोसिटी कि ये चीज़ें जो हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, ये डेवलपमेंट वर्ड काफ़ी सुनने में आता था कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता क्या है? पहले समझे तो कि होता क्या है एक्चुअल में। वो दूसरा रीज़न ये था कि जो रियलिटीज़ दिख रही थी उनको समझने का वो भी चाहिए था, क्योंकि जो हमारा स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था। उतनी ही चीज़ें समझ में आ रही थी जितनी हम देख पा रहे थे, और वैसे भी हमारी फ़ील्ड का ये रहता है कि हम लोगों को ना 2 ही चीज़ें समझ में आती थी उस टाइम पे कि या तो ये है या तो वो है। बीच वाला कोई एरिया होता ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लैब में काम करने वाले आदमी, वही एक्सपेरिमेंट्स पे जीवन चलता है। वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, अपने हिसाब से हम चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ह्यूमन्स के साथ डील करते हो ना, तो सिचुएशन और कंडीशंस कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। काफ़ी अलग चीज़ होती है। और साथ में मेरे लिए था एक मोटिवेटिंग फैक्टर और था कि मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों एक ही उसमें थे बैच में, फॉरेंसिक्स में साथ में। उसका नाम मोनिश कुमार है, मोनिश कुमार मेहरा। तो वो मेरे से पहले उसने टिस के लिए अप्लाई किया, तो मैं उससे कई बार बैठ के पूछता था, भाई इसमें जाके करोगे क्या? क्योंकि हमारे को तो वही एनजीओ समझ में आता था और क्या आ रहा था कि एनजीओ का वो। तो क्योंकि पहले तो आपके दिमाग में वही स्ट्राइक करता है ना कि रोटा मतलब ये आपका रोटी कपड़ा और मकान के भाई ये कैसे वेरी आएगा? हुँ, तो कोई भी स्टूडेंट हो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि रोटी कपड़ा मकान ये कैसे मिलेगा भाई, ये तो एनजीओ में काम करेंगे। हमारे तो दिमाग में वही था कि एनजीओ ज़्यादा वॉलंटियर वर्क ही रहता है, प्रोफेशनलिज्म का वो दिखता नहीं था इतना, और जब तक आप सेक्टर एक्सप्लोर ना करो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो उसका करेक्ट। टेस्ट मुंबई में एडमिशन हुआ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स किया उसने। तो उसके थ्रू मेरे को काफ़ी गाइडेंस मिली इस फील्ड के बारे में। तो उसने बताया भी कि ये कॉलेजेस हैं, आप अप्लाई करके देखो, देखो कोर्स करिकुलम क्या है। तो मैंने अप्लाई किया, एपीयू में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे इवन इंटरव्यू की कहानी भी बहुत अलग रही है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे पैनल में 2 प्रोफ़ेसर थे, एक तो शायद अब रिटायर हो चुके हैं, एक नज़रुल हक करके हाँ, होते थे। या नज़रुल हक करके होते थे। तो मेरा इंटरव्यू ऐसा था, दूसरे जो प्रोफ़ेसर थे वो एजुकेशन से थे। उनका नाम मेरे को याद है, उनको भूपी-भूपी सर बोलते थे काफ़ी वहाँ पे लोग। अब पता नहीं क्या उनका एक्चुअल नाम क्या था, क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन वैसे रहा नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे मिला था। तो मेरा सारा इंटरव्यू पंजाबी में हुआ। सर बैठे, ओके। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उन्होंने पंजाबी में शुरू किया। अब नज़रुल सर वहाँ साइड में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं अब, क्योंकि अब यहाँ पूरा इंटरव्यू पंजाबी में चल रहा है, अब उनको भी एक तरीके से समझ में आना चाहिए कि बातें क्या हो रही हैं। और कॉमन बातें थी, बहुत सिंपल-सिंपल बातें थी, बहुत मतलब ऐसे कि सिंपल और बहुत आप बोलेंगे कंफर्टेबल स्पेस जो होता है ना क्रिएट करना, उन दोनों ने जी। क्रिएट किया और बहुत आराम से इंटरव्यू निकला मेरा। सारा इंटरव्यू हँसते-खेलते आराम से निकला, एडमिशन हो गई, पहुँचे, कॉलेज में आए। कॉलेज में तो एक तरीके से पहले तो शौक वाला हिसाब था, क्योंकि जो बच्चे आ रहे थे, एक तो ये कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें उनको पहले से ही आइडिया था कि हम किस लिए आ रहे हैं। हम तो ये था कि मैं तो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था कि ये है क्या? तो वहाँ भी एक तरीके से शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि इतने ज़्यादा खतरनाक बच्चे हैं, इनको सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता अभी। धीरे-धीरे डिस्कवर किया, चीज़ें देखी। और एपीयू में भी ये रहता है कि आपको ना डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। जी। अलग-अलग स्टेट्स के लोग, अलग-अलग माइंडसेट्स, अलग-अलग प्रोफेशनल्स से भी आ रहे हैं बैकग्राउंड से। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 10, 15, 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी आपके साथ बैठे हैं। उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें आपको उठाने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। हुँ, हुँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा वो रहा था फ़ेज़। और जो आप ये पूछते हो कि ट्रांज़िशन कैसे हुआ? ट्रांज़िशन अगर बेसिकली मैं एक वर्ड में बोलूँ तो क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ। चलिए, आप जब लैंड किए एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी में तो अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बट क्योंकि आपका हुँ, एंगेजमेंट क्योंकि उस डिपार्टमेंट में रहा था, उसके हुँ, बाद से हुँ, जब आप स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में आते हैं, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे एपीयू में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किस टाइप का आपको एक्सपोज़र मिला? आपने जो काम किया होगा अपने फील्ड वर्क के दौरान या इंटर्नशिप के दौरान, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा-सा ब्रीफ में बताएँगे? ठीक है। मैं जब सबसे पहले आया इसमें एपीयू में, तो वही क्लियर पहले 2 लाइनें ब्लैक एंड व्हाइट वाला हिसाब। और यहाँ पे आके वो आपको सदमा लगेगा एकदम से, बहुत सारी चीज़ें नई-नई हो रही हैं। कई बारी तो कई कोर्सेज़ में ऐसे-ऐसे
आपको चीजें करनी पड़ती थी जो हमारे लिए वो एक तरीके से पहले पहले अनकंफर्टेबल होती थी। जैसे हमारा एक सोशियोलॉजी की क्लास होती थी, उसमें बेसिकली हमारी प्रोफेसर कहते थे कि लास्ट में आपको अपने घर से एज अ फीमेल ड्रेस होके आना है, एक मेल को पूरा वो घर से फीमेल की तरह ड्रेस करके वो अपने वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंचेंगे और देखेंगे लोगों के रिएक्शंस देखेंगे, तो उनको देख के वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एक जेंडर पर्सपेक्टिव, जो जेंडर लेंस होता है ना, उसको समझने के लिए वो एक्सरसाइज होती थी। उस टाइम पे हमारे को क्या समझ में आ रहा था कि ये जेंडर पर्सपेक्टिव समझा रहे मुझे हैं, नहीं जेंडर लगता लेंस। है कि ये इंडिया में या कहीं वर्ल्ड में भी इस टाइप का चैलेंजिंग सिचुएशन स्टूडेंट्स को दिया जाता होगा। ये चीजें मेरे ख्याल से एपीयू में ही पॉसिबल है, बाकी जगह तो मैंने इतना नहीं देखा आज तक, क्योंकि थ्रू आउट अभी 4 साढ़े 4 साल तो सेक्टर में हो गए हैं, तो मैं अलग अलग उनके लोगों से मिला भी हूँ, मगर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि ऐसी एक्सरसाइजेज या ऐसे काम किसी को भी दिए गए हों। एक अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज हम लोगों को मिलती थी। फील्ड वर्क का जब आप बात करें, सबसे पहला एक्सपोजर तो हमारा जो फील्ड इमर्जन पे भेजा जाता था 15 दिन के लिए, एक दूर के गांव में उठा के आपको 7-8 लोगों को एक साथ भेज देंगे, आप जाओगे। मेरा पुणे में था, तो मैं पुणे गया, फार्म नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हम 7-8 लोग थे, एक साथ गए। इवन जब गए तो हमारे लिए था पहले तो जर्नी, पहुंचे सेंटर, पहुंचना भी हमारे को ये लग रहा है कि यार सेंटर कैसे पहुंचेंगे, लोगों के पास इतने इतने सामान, अब फील्ड में जा रहे हैं पहली बारी। सबके लिए ये था कि फील्ड एक्सपीरियंस वो पहली बारी, मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोगों के लिए पहला वो होता है कि आप एक्चुअल में जो फील्ड आपको देखने को मिलती है ना, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम हर चीज को रोमांटिसाइज करते हैं, इवन गाँव की लाइफ को भी ना हम रोमांटिसाइज करते हैं। गाँव की लाइफ, सारी फैसिलिटीज, हम वो बड़े बड़े थैले लेके निकलेंगे, अपना पूरा सामान लाभ लश्कर लेके निकलेंगे और वैसे चलेंगे। पर गाँव की लाइफ बड़ी मिनिमलिस्टिक होती है, सिंपल चीजें, सिंपल सा आप सामान रखो अपने पास, जो आपकी जरूरत है उतना ही लेके चलो, उतना ही आपके काम आएगा। सबसे पहला तो वो, और काफी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे को फील्ड में भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलती थी। गए तो वहां पे जो, क्योंकि अभी तक ये था कि एपीयू में जब हम पढ़ते थे, थ्योरी और जो प्रैक्टिकल वर्ड होता है ना, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। थ्योरी अच्छी बात है, मगर जब हम प्रैक्टिकली चीजों को देखा वहां पे फील्ड इमर्जन में ही, एक बार सदमा लग गया था कि जो प्रैक्टिकली ये चीजें पढ़ाते हैं यहाँ, तो वो अप्लाई नहीं होती है। हाँ, तो हमारा ये था कि जैसे हम लोग बैठते थे, सबसे पहला हमारा ये था, जिस गांव का हमारे को वो दिया गया था कि आप ये कोंडना फोर्ट के पास, हमारा कोई वो था गांव, पुणे के पास पड़ता है ये, पुणे अफाम का हमारे को लोकेशन थी, तो हम लोग पुणे के आसपास ये कोंडना, और ये रांझे नाम का उनका वो था, वहां पे उनका बेसिक ये था, जैसे एक एरएसपीए के कैंपस है हर एरिया में, वैसे अफाम का अपना कैंपस था वहाँ पे, तो हम कैंपस के अंदर ही रुके हुए थे। तो हमारे को अलग अलग गाँव असाइन हो गए, 2-2 3-3 आदमियों को, कि आप इस गाँव में जाओगे, आप पहले तो बेसिक प्रोफाइलिंग करोगे, गाँव का प्रोफाइल पता करो, बैकग्राउंड पता करो, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पता करो। तो उसके लिए जो हमारे को बेसिक एक्सपोजर हुआ, हम लोग गए, अब पहली बार जा रहे हैं हम, तो वही जो कॉलेज में सिखाया उसी हिसाब से जाएंगे। अब वैसे ट्राई कर रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वहां देखा कुछ लोग ना पेड़ के नीचे बैठ के पत्ते खेल रहे थे, बुजुर्ग जैसे बैठे होते हैं हर उसमें एरिया में, तो हम लोगों ने बोला कि चलो इनके पास ही बैठते हैं। उन्होंने हमारे को आधे घंटे में पूरे गांव की कहानी सुना दी, पूरे गांव का बैकग्राउंड, पूरे गांव का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इवन इंटरनल कहानियां भी हम लोगों को पता चल गई, पंचायत के सिस्टम पता चल गए, कब मीटिंग्स होती हैं, कब नहीं होती हैं, इसके क्या क्या इसके लिए डिस्कशन होती है। इसके लिए लोग महीनों वेट करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर टूल होता है पीआरए का, जिसको आप हाँ, प्रैक्टिस करते हैं, जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स जाके हाँ, प्रैक्टिस करते हैं गाँव में, उसको करने के हाँ, लिए आपको टाइमलाइन चाहिए, समय चाहिए, लोगों को घर-घर जाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो बहुत एक समय लगता है, उसका प्रॉपर एक प्रोसेस है। उसको आपने आधा हाँ। घंटे में कर लिया। हम लोग स्केल में जब मैं आया ना, ये पीआरए वगैरह, हम पीआरए हमारा कवर होता था, पीआरए एपीयू में कवर करवाती थी, मायराडा आती थी, मायराडा पीआरए हम लोगों को पूरा प्रैक्टिकली कैसे करना है वो सब कवर करवाया करते थे। मगर जब आप फील्ड में जाते हो ना, फील्ड में आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, क्योंकि आप एक तो लिमिटेड 15 दिन के लिए हो, कोई जी। आप महीनों तो हो नहीं कि आप रेपो बनाओगे या उसके बाद फिर आप काम चालू करोगे। अब आपके पास 15 दिन है, आपको ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये रहता है कि चलिए वो तो ग्रेड वाला बात होगी कि हम लोगों को ग्रेड भी लेने हैं कॉलेज से, मगर एक ये भी होता है कि जब आप गए हो तो कुछ तो पता करके आओगे, है ना, इन्फॉर्मेशन लेना तो जरूरी है ना, जो जो हम लेने गए हैं। तो हम लोग गए, हम लोगों ने बोला कि ये लोग बैठे हैं, पहले बातचीत करते हैं इनसे, बातचीत की, अब उनको हम लोगों के साथ बात करने में मजा आने लग गया, हम लोगों को उन लोगों के साथ बात करने में मजा आने लग गया। बात ही बात में पूरी कहानी उन लोगों ने निकाली। देखिए, पीआरए और ये जो टूल्स हैं, ये हम अभी जब मैं केआरएसपी में, यहाँ भी सारे टूल्स स्टैंडर्ड तौर पे यूज होते हैं। पर एक चीज रहती है, जब आप फील्ड में जाते हो ना, कई बार आपको थ्योरी साइड में रख के ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करना ज्यादा जरूरी होता है। आप कनेक्शन राइट। बिल्ड करो तो आपको टूल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान बहुत जल्दी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, वो हर एरिया, इंडिया में कॉमन है, बाकी बाहर का तो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं, पर इंडिया में मैंने बहुत सारी स्टेट्स कवर की हैं। यहाँ पे मैंने एक ही चीज देखी है कि लोग बहुत ईगर होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के, पर ये होता है कि ट्रस्ट का जो बेसिक वो होता है ना, कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। अब जैसे मैं यहाँ गुजरात में हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप हल्की फुल्की गुजराती ट्राई करते हैं ना बोलने की, चाहे आप टूटी फूटी करें, पर यहाँ के लोग फिर उसको बोलते हैं कि भाई ट्राई कर रहा है आदमी, हमारे कल्चर को समझ रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दे रहा है, ट्राई कर रहा है, आपके साथ खुद ओपन अप होना चालू होंगे।
और जबकि एक जिस एक एरिया में मैं रहता हूँ डेवलपमेंट एक ये डेवलपमेट प्रोफेशनल के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जहाँ जा रहे हैं उसके कल्चर एंड लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करें। ख़ास करके जब पूरी इंडिया में ये जो लैंग्वेज का इश्यू चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हुँ, बहुत तेज़ी से ये चीज़ ग्रो कर रही है। मतलब एक स्टेट है जो दूसरे स्टेट के लोगों को देखना नहीं चाह रहा है क्योंकि ये देखा-देखी हो रहा है। कहीं 1-2 जगह हो रहा था बट ये रेप्लिकेट होता हुआ जा रहा है दूसरे-दूसरे स्टेट्स पे। हुँ, तो एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आज हो सकता है 2 महीना यहाँ एक पर्टिकुलर स्टेट पे है, हरियाणा में है या फिर गुजरात में है। लेकिन हो सकता है कि वो 3 महीना बाद किसी दूसरे स्टेट्स में हो, किसी एकदम रूट कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो क्योंकि आप एज़ अ ट्रैवलर जब जाते हो तो आप सिटी के एरियाज़ पे घूमते हो, उधर ही हुँ, लोगों से इंटरैक्ट करते हो। बट आप जब एज़ अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल जाते हो तो आपको खुद नहीं पता होता कि किस बीहड़ से गाँव में मुझे भेजा जाएगा। जी, जी। ये तो है यहाँ पे मगर देखिए ये जो लैंग्वेज का इश्यू है ना वो तो अब देखा जाए तो उसके रूट अलग तरीके से वो हैं और उसको प्रोपेगेट भी किसी और तरीके से किया जा रहा है उस पे तो मैं अभी बात नहीं करूंगा आपसे मगर मैं आपको बेसिकली ये बताता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे वो डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो नहीं हो जब भी आप किसी नई जगह पे जा रहे हो आप नए लोगों के बीच में जा रहे हो आपको उनके कल्चर को समझना और उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है क्योंकि मान लीजिए कोई मेरे उसमें आता है स्टेट में अगर आता है या आपकी स्टेट में कोई आता है हम हर किसी के कल्चर क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कल्चरली हम लोग इतने ज्यादा डिफरेंट हैं अलग अलग चीजों में मगर ये है कि एक बेसिक चीज है रिस्पेक्ट अगर आप देते हो तो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी है और हल्की फुल्की वो करनी है आपको कोई ऐसा तो बोल नहीं रहा कि एक्सपर्ट लेवल पे और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं ये जो वो इंसिडेंट्स हैं हाँ हो रहे हैं लैंग्वेज को लेके इशू भी आते हैं ये सब चीजें हो रही हैं मगर मैंने आज तक 26 स्टेट्स में ट्रेवल किया है इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में गया हूँ अलग अलग स्टेट्स में रहा भी हूँ देखा भी है पर मैंने ऐसा सच्ची चीजें नहीं देखी वो किस लेवल पे प्रोपोगेट हो रही है कौन कर रहा है वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं मगर अगर आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखो ना अगर आप मान लीजिए आप साउथ के भी किसी गांव में बैठे हो अगर आपको दिक्कत आ रही है आप हल्के फुल्के अगर वो भी समझते हैं कि आप कोशिश कर रहे हो है ना आप कोशिश करो रिस्पेक्टफुल रहो वो भी आपकी हेल्प करते हैं ये जो इश्यूज हैं ये जनरेट हो रहे हैं ये अलग स्ट्रीम की तरफ से आ रहे हैं ये और डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको वहां पे रह के उस कम्युनिटी के साथ काम करना जैसे आपने कहा कि हमारे को नहीं पता कि हमारे को कहाँ भेज दिया जाएगा हर 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद कहीं भी उठा के हमारे को किसी अलग गाँव में भेज दिया जा सकता है अभी रिसेंटली हमारा एक एसबीआई की एक हमारे अलग अलग एसएसटी चलते हैं तो जी। एसएसटी में हमारा एक साइला एसएसटी है साइला एसएसटी से एक टीम को जो राजस्थान के हैं वो वहाँ पे जो टीम हेड है उनको उठा के भेजा गया ये गुजरात का जो बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान का वाओ हुँ, करके एरिया है वहाँ पे अब वहाँ की जो कम्युनिटी है उनकी लैंग्वेज बहुत अलग है कल्चरली वो गुजरात से अलग है क्योंकि उनके आधे रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं आधे यहाँ पे रहते हैं मगर अगर वो उनकी कल्चरल उसको हेरिटेज को ना तो इम्पोर्टेंस दे ना ही उसको इनकाउंटर करे ना ही समझे कि भाई ये क्या है कम्युनिटी कहाँ से आ रही है भाषा क्या क्या चीजें इनकी उसमें चलती हैं तो ना तो उनके साथ कभी काम कर पाएंगे ना ही कभी बॉन्ड बनेगा और कम्युनिटी के साथ बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी होता है फिर जब वो आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं ना क्योंकि यूजुअली हम लोग रह अकेले रहे होते हैं अब मैं भी यहाँ पे अकेले रहता हूँ कोई भी नहीं होता आसपास ना हमारी उसका अब आप बोलेंगे देखा जाए तो एक तरीके से सबसे पहले दोस्त तो हमारे यही बनेंगे ना आपको दोस्त भी बनाने हैं आपको कनेक्शन भी बिल्ड करने हैं आपको आगे चल के इन लोगों के लिए काम भी करना है सबसे पहले इनको समझना जरूरी है और समझना दो चीजों से आता है पहला कल्चर आप कल्चर समझोगे आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें जो आप इशू अभी हम लोग वो करते हैं ना कि इशू आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टाइप का इशू ट्रैक करते हैं कि ये इशू है वो इशू जब आप कल्चर को समझना चालू करते हो आप उसकी रूट्स पकड़ में आती हैं कि ये कहाँ से निकल के आ रहा है तभी आप उस पर काम करना चालू कर पाओगे दूसरा लैंग्वेज लैंग्वेज में जितना आप उनकी लोकल लैंग्वेज में ट्राई करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आपके साथ कोई भी एरिया में आप चले जाओ ट्राई करोगे लोग उनको भी पता है कि आप बाहर के आदमी हो ट्राई कर रहे हो पकड़ में आ जाता है कि आप उनका लोकल आदमी नहीं हो क्योंकि एक्सेंट मैच नहीं करता मगर ये है कि वो सोचते हैं ट्राई तो कर रहा है कम से कम हमारे बीच में मिक्स होने के लिए जी। और ये डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है मैंने अपने साथ कई सारे लोगों को देखा भी आते हैं बाहर से रहना चालू करते हैं मगर ये रहता है कि बेसिकली वो उस एरिया को ना तो समझने की ट्राई करते हैं ना ही वहाँ का कल्चर समझ पा रहे हैं ना ही वहाँ की लैंग्वेज को कवर करने की ट्राई कर रहे हैं ना ही मगर कई इतने बढ़िया आते हैं कि वो एक महीने में आप बोलोगे कि पूरी कम्युनिटी के साथ दोस्ती करके बैठे हैं हर घर में जा रहे हैं हर गाँव हर घर वाला उनको जानता है तो वैसे वो बेनिफिशियल होता है अपने लिए राइट। आपने जो है वो एपीयू के बाद सीधा एसबीआई फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था? सीधा आपका मैंने एसबीआई जर्नी फेलोशिप कैसा के लिए था? अप्लाई किया एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा था? आपको फेलोशिप के बारे में पहले पता कैसे लगा था? स्टार्टिंग से हमें बताइए। एसबीआई फेलोशिप का अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एक्सपोजर भी मेरे को एक मेरे बैचमेट के थ्रू ही हुआ अभिषेक पचौरी नाम के हैं वो तो उनके थ्रू मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि आप ये फेलोशिप है आप एक बार रीड तो करो क्योंकि पूरा एक डॉक्यूमेंट आता है हुँ, हुँ, हुँ। कि फेलोशिप में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी फेलोशिप है क्या क्यों आपको ज्वाइन करनी चाहिए क्या करना चाहिए तो हमने पहले वो डॉक्यूमेंट पढ़ा फिर अप्लाई किया अप्लाई का प्रोसेस भी वहाँ पे बेसिकली आप तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता है हमारे टाइम पे ये था कि हम अप्लाई करते थे और उसके बाद हमारा एक रिटर्न वो होता था
जो हमारे को असाइनमेंट आते थे, हम असाइनमेंट सबमिट करते थे, उसके बाद फिर हमारे राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते थे और उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता था। मगर एसबीआई में सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है कि अगर पैनल लास्ट में बैठता है, अगर 3 लोगों का पैनल है, तो तीनों के तीनों लोगों की यस चाहिए। अगर मे बी और नो भी लिखा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एसबीआई का एक बेसिक क्राइटेरिया, अगर तीनों लोग हाँ बोल रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो अगर मे बी और नो भी है तो भी चांसेस कम है उसमें। और फेलोशिप अगर आप वो देखते हैं, जब मैंने अब शुरू तो किया था डॉक्यूमेंट रीड करके किया था कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा था। मगर जब हमने ज्वाइन किया फेलोशिप, तो फेलोशिप में आपको जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये थे कि वो एक जर्नी की तरह थी, ना कि वो कोई जॉब है, ना कोई ऐसा वैसा है कि आप बोलेंगे कोई जॉब असाइनमेंट है, आपको पैसा मिल रहा है, ये है वो है। वो एक जर्नी की तरह है। जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हैं, क्योंकि आपको एक एरिया में रख दिया जाता है और जानबूझ के आपको ऐसे एरिया में प्लेस किया जाता है जहाँ की आप लैंग्वेज नहीं जानते। मेरी प्लेसमेंट हुई आसाम में, मेरे को आसाम भेजा गया, एक गांव में रख दिया गया, तेजपुर रोड पे एक गांव था बेजरा करके, वहां मेरे को प्लेसमेंट दे दी गई कि आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट आप खुद चूज करोगे। प्रोजेक्ट भी आप खुद चूज करोगे, आप थीमेटिक एरिया भी अपना खुद चूज करोगे, और इवन प्रोजेक्ट को डिजाइन भी आप ही करोगे। आपको खुद का डिजाइन करना है, खुद सारी चीजें, जो आपका थ्योरी वाला रहता है ना, थ्योरी वाला जो आपने पढ़ा होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ अप्लाई करते हो। फिर पहले 6 महीने तो आप खुद को फेल होते देखते हो, क्योंकि जो चीजें आप थ्योरी में पढ़ के आए हो, आप पूरी पूरी अगर वैसे लगाना चालू कर दो तो वो नहीं होता। 6 महीने आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि यार ये चल क्या रहा है, मैं इतनी सारी चीजें ट्राई कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रही है। 6 महीने बाद ना आपको फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं कि जो थ्योरी वाला पढ़ के आते हैं वो दिमाग से निकाल के प्रैक्टिकलिटी पे अगर हम चलें, जो चीजें हमारे सामने हैं उनको उठा के अगर हम चल रहे हैं तो वो बेटर तरीके से वर्क करते हैं। तो आप अपना प्रोजेक्ट चेंज करते हो, हल्का फुल्का उसमें चेंजेस लाते हो, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जब आप खुद का प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो ना, आपको एक तो बेसिक 3 चीजें, टाइम, स्कोप और आप कितना कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रख के चलनी होती हैं। यहाँ पे आप खुद ही सब कुछ डिजाइन कर रहे हो, आपको रिस्क बेशक लेट पता चल रहे हैं, पर आप मिटिगेट करने के लिए भी आपके पास टाइम है कि आप मिटिगेट कर पाओ। और सबसे पहले वही है कि आप जब चीजें चालू करते हो ना वहाँ पे प्रोजेक्ट में, तो आपको मेंटरशिप है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप नहीं रहती है, पर ये होता है कि आपको एक तरीके से अकेला छोड़ देते हैं। आपको बोलते हैं कि आप देखो पहले एक बार खुद को डिस्कवर करो, अपनी लोकेशन को डिस्कवर करो, और इसके थ्रू आप धीरे धीरे चीजें पहले अनलर्न करो, उसके बाद सीखना चालू करो। फेलोशिप का बेसिक एम हमारा ये रहता था, वो बोलते थे पहले कुछ चीजें आपको अनलर्न करनी पड़ती हैं, पहले कुछ चीजें आपको भूलनी पड़ती हैं, उसके बाद आप चीजें सीखना चालू करते हो। और ये तो चलिए प्रोफेशनल बेनिफिट्स हैं। अगर आप वैसे देखें तो मेरे कुछ जो अभी सबसे बेहतरीन दोस्त हैं अभी के टाइम के, वो मेरे को इस फेलोशिप के दौरान ही मिले। और जी। इतने डाइवर्स ग्रुप आता है इस फेलोशिप में कि आप अगर देखें तो अगर किसी यूनिवर्सिटी लेवल से भी उठाएं तब भी बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप आता है। इतने इतने साल के एक्सपीरियंस लोग हैं, इवन कई लोग तो बैंक से डायरेक्टली फेलोशिप में होते हैं। एसबीआई बैंक से भी कुछ लोग डायरेक्टली फेलोशिप में होते हैं। तो जब आप उनके साथ बात करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव समझने की ट्राई करते हैं, उनकी क्या मोटिवेशन है या वो काम कैसे कर रहे हैं, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। हर एक आदमी यूनिक है, हर किसी के नए वो रहते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक हर आदमी के पास एक स्किल सेट है। आप चाहें तो हर किसी से थोड़ा थोड़ा उठा के अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो आगे की प्रोफेशनल जर्नी है उसको बेटर बना सकते हैं। तो वो एक बेसिकली एक जर्नी की तरह है। आप सीखो, चलो, और प्रॉपरली जो जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं ओवरकम करने की ट्राई करो। और वहाँ पे ये नहीं है, हमारे को ये नहीं बोला जाता कि आपको सक्सेसफुली होना है या आपका प्रोजेक्ट हो। वहाँ फेलियर के लिए भी स्कोप है। वहाँ आपको पहले बोला जाता है कि आप फेल हो गए उसकी टेंशन नहीं लेनी है, फेलियर होते हैं कोई बात नहीं, मगर उसे सीख के जाना है। तो वो फेलोशिप का हमारा कोर ये था। आप आपका पर्टिकुलरली काम क्या था असम जब आप गए थे? तो आपका प्रोजेक्ट आपने क्या चूज़ किया था? क्या देखा था कम्युनिटी में जो आपको इंटरेस्टिंग लगा और लगा कि इस चीज़ को कर सकते हैं? मैं जब असम पहुंचा तो मेरा था, ऑर्गेनाइजेशन थी आरजीवीएन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि वो करके। जो एसबीआई और फेलोशिप एसबीआई यूथ फेलोशिप इंडिया पार्टनर पे जो पार्टनर वर्क करते ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हैं, उनके। तो उनके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लेस किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी प्लेस किया जा जी जी सकता जी है। आप वहाँ जाते जी हैं, आपका ओरिएंटेशन होता है एंड देन इंटरेक्शन होता है कम्युनिटी के साथ एंड देन आपको फिर प्रोजेक्ट खुद का डिज़ाइन करना है जी। कम्युनिटी में ऑब्जर्व करने के बाद। तो आपका क्या प्रोजेक्ट था? मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली ये था, जब मैं पहुंचा वहां पे तो मैंने देखा कि बाकी सब तो सही है, जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत कम थी। जी। मतलब अगर आप बोलें कि अगर आप बेसिक लेवल की इनकम गांव में जनरेट करना चाहें तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। और वो भी ये था कि मेल्स तो माइग्रेट हो ही रहे हैं, आसाम से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है, अदर स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, और मेजोरिटी क्या है कि डिसेंट काम बहुत कम लोगों को मिल पाता है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, इन्हीं जगह पे, या फिर वो लोग काम करते मिलते हैं आपको। तो मेल्स की माइग्रेशन बहुत ज़्यादा थी उस एरिया में, फीमेल पॉपुलेशन रह रही थी पीछे, मगर ये था कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। और उस गाँव में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब वो जिसकी वजह से भी हुआ हो, जिसने भी किया हो, वो तो वही लोग जानते हैं। वहां पे अननेसेसरी लोन दे दिए गए थे लोगों को, ओके। अननेसेसरी लोन उनको पकड़ा दिए गए थे, और लोन भरने की कोई वो थी नहीं उनके पास। और फिर उनके ऊपर केस पे केस, जबरदस्त केस हो रहे थे उनके ऊपर। और ये था कि अब उनको भी ये था, वहां के लोग क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में ना जो लोग रहते हैं वो अदर, अगर आप कॉमन हमारे ऑल ओवर इंडिया से देखें तो उनका जो हमारा कल्चरल वो है,
वो काफी अलग है। उनका बेसिकली ये रहता है कि वो आत्मसम्मान पे जब उनके बनाते हैं ना, फिर वो काफी जल्दी वो हो जाते हैं कि हमारा ये एक तरीके से आप हमारे उस पे सवाल उठा रहे हैं कि इंटीग्रिटी पे या मेरी डिग्निटी पे, कि मैं पैसा नहीं दूंगा आपका या वैसे। तो वो स्ट्रगल भी चालू था वहाँ पे एरिया में, कि बैंक के साथ स्ट्रगल हो रहा है, केसेस चल रहे हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो देखा कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वहाँ पे ना ईडीआई क्लस्टर बना रहा था एक किसका, वीविंग का। वहाँ पे क्या होता है कि आसाम के मेजॉरिटी एरियाज में एक ट्रेडिशन कह लीजिए या कह लीजिए कि एक पुरानी वो चलती आ रही है सालों से, कि वीविंग जो होती है ना, एक घर की एक फीमेल मेंबर को वीविंग बहुत अच्छे से आती होती है। तो वो क्या होता है कि माँ अपनी बेटी को ट्रांसफर करती है, वो फिर अपनी बेटी को ट्रांसफर करती है, तो वो इनडायरेक्टली आगे आगे चलती जाती है। और उनकी वीविंग क्या होती है, बहुत इंट्रिकेट और बहुत क्लीन होती है। पर यही होता है कि मार्केट करने का कोई सोर्स नहीं, मार्केट का उनको आइडिया नहीं कि हम कहाँ जाके बेचें, किससे कनेक्शंस बनाए, ना रॉ मटेरियल का उनको आइडिया, ना उनको ये पता है कि उनका बिजनेस सेटअप कैसे होगा, इंसेप्शन का भी आइडिया नहीं। आइडिया तो है उनके पास कि हमें वीविंग करेंगे तो हम ये सामान बनाएंगे, ये बेच लेंगे, पर ये है कि बाकी सारी चीजों का कोई अता पता ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले इसी के अराउंड अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना चालू किया। मैंने कहा, मेरे पास एसएचजी वाली कुछ लेडीज थी जो मेरे को पहले, मैं जब इनिशियली रेपो बिल्डिंग के लिए गाँव जाया करता था तो मिली, बातचीत की, उनमें से मैंने व्यूवर्स देखे कि व्यूवर्स हैं हमारे पास, कम से कम 30-32 व्यूवर्स निकल आई लेडीज। तो उनके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट चालू किया। मैंने बोला कि आप एक, उन्होंने ग्रुप का नाम रखा बंदोबी करके। बंदोबी का मतलब असमीज में होता है फ्रेंड। तो उन्होंने ग्रुप चालू किया, अलग से 30-32 लेडीज जुड़ी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट डिजाइन करना चालू किया। और ऊपर से ये था कि आरजीवीएन भी हम लोगों को सपोर्ट अच्छा खासा देता था। आरजीवीएन का खुद का स्टोर था, ग्रास रूट्स करके, जहाँ पे वो लोकल ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट बनते थे उनको शोकेस करता था, बेचता था आगे। तो वहां से भी हमारे को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती थी। वहीं से मेरी ये जो लाइवलीहुड की जर्नी है या इंटरप्राइजेस की जर्नी है, वहीं से चालू हुई। मैंने सबसे पहले लाइवलीहुड पे काम करना चालू किया, देखा कि ये करते जो भी हैं उसमें एक सबसे बड़ा गैप ये था कि बाकी सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, आप इंसेप्शन भी करवा लोगे, सब करवा, पर जब तक आप उनको मार्केट नहीं दे पाते हो, या जब तक आप उनको मार्केट से कनेक्ट नहीं करवा पाते हो, उनको ये नहीं समझा पाते हो कि वेंडर से कैसे डील करना, तब तक वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे मैंने यही काम चालू करवाया। मैं ये करता था कि जब भी उनके सीजन आते थे, तो असम में गमछे आपने देखे होंगे, गमछे पहनते हैं लोग। तो हम कुछ साइड में रॉ मटेरियल थोड़ा यहाँ वहां से, अब ये आरजीवीएन वालों को पता लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, उनका थोड़ा रॉ मटेरियल चोरी कर करके अपना वो अलग से गमछे बना के हम लोग अलग अलग जगह स्टॉल्स लगाया करते थे। लेडीज को जी। वहां खड़ा कर दिया, उनको बोला कि आप लोग अपना मटेरियल आगे बेचना चालू करो। हाँ, ये सेम ऐसे ऐसे गमछे रहते हैं। तो ये हम लोग, और असम में क्या होता है, ये जब बिहू का टाइम आता है ना, बिहू के टाइम पे बहुत बिकते हैं। हर किसी को अपने कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, तो ये गिफ्ट करने का एक वो ट्रेडिशनल वो रहता है। तो हम लोगों ने गमछे अच्छे मटेरियल के, कॉटन वगैरह आरजीवीएम के थोड़े मटेरियल से सोर्स करके अपने बनाए। और वहाँ पे मार्केट में, लोकल मार्केट में, मतलब ज्यादा बाहर की मार्केट पे जाना उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, वहीं बेचना चालू किया, पर अलग अलग मल्टीपल लोकेशन पे बेचना चालू किया। तो जो कॉमन गमछा जाता है, जो कॉमन मटेरियल का होता है, वो 100, 150 या 200 रुपए के बीच में आपको, अगर आप कमर्शियली वो बना हुआ, मशीन का बना हुआ लोगे तो। वैसे ये हैंडमेड थे, तो हमने इनको 600 रुपए और 1000 रुपए पे सिंगल पीस पे पुश करना चालू किया। पहले पहले तो ये था, नहीं बिक रहा था, मगर बाद में ऐसा हुआ कि जब बिकने आए तो एक ही दिन में हमारा स्टॉक खत्म हो गया। तो जब मैंने इनिशियल लेवल पे चालू किया था उनके साथ, तो उनकी कैपिटल अगर आप देखें 30-35 थाउजेंड की थी। जब मैं निकला हूँ वहां से 13 महीने बाद, तो ज्यादा तो नहीं कैपिटल हो पाई, पर उनकी जो इनिशियल वो थी सारी सेविंग्स और वो मिला के 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में उनके पास उस टाइम पे कैपिटल थी कि वो अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर पाए। तो उतना मेरा प्रोजेक्ट रहा उन लोगों के साथ, और उन लोगों का जो सपोर्ट था बेसिकली। अब ये होता है कि एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था, मगर एसबीआई फेलोशिप में ना एक बहुत बढ़िया चीज होती है, एसबीआई फेलोशिप में आपको लैंग्वेज सीखने के लिए पैसा दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी एरिया में जाते हैं, तो वहाँ आपको जी। बोला जाएगा कि आप एक वहाँ लोकल ट्यूटर हायर कीजिए, चाहे कम्युनिटी से रखिए, पे एसबीआई उसको करेगी, पर वो आपको लैंग्वेज सिखाएगा 3-4 महीने। अगर आप 6 महीने भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। वो दो तरीके से फायदेमंद है, एक तो आप लैंग्वेज सीखेंगे, और जिसको आप एज अ ट्रेनर रख रहे हैं या एज अ ट्यूटर रख रहे हैं, उसका थोड़ा आपको लाइवलीहुड में भी सहायता हो। हाँ। तो उसको सेकंड पॉइंट ऑफ, तो ये भी एक एसबीआई अपने पास ऑप्शन देती है। और उसमें एसबीआई में ये रहता है कि सिर्फ जैसे प्रोजेक्ट डिजाइन तो आपका एक वो हो गया कंपोनेंट, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर चल के थोड़ा टाइम बाद, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आपको बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो एसबीआई फिर आपको फंडिंग ऑप्शन भी देती है। ओके, ये आपको कितनी पूरा funding दे की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आप एज अ फेलो? प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट, आप क्योंकि फंडिंग रिक्वायरमेंट आप डालते हो, मगर अगर आप देखो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाख के बीच में ही आपकी फंडिंग उस पर रहती है बहुत, क्योंकि आप बहुत कम नंबर के साथ काम कर रहे होते हो। हम्म। ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते भी हैं हमारे मैक्स टू मैक्स, अगर प्रोजेक्ट्स में आप उठाएं, तो जो ग्रुप है जिनके साथ वो काम कर रहे हैं 20-30 से ऊपर एक्सीड नहीं करता। हम्म। तो 2-3 लाख की फंडिंग मिलती है, और वो आपको ये होता है कि आपको यूटिलाइज करनी है, उसके ऊपर कोई वो नहीं होता कि कोई लाइन आइटम है, कुछ फिक्स है कि आपको यहाँ डालना है वहाँ डालना है। जैसे यूजुअली प्रोजेक्ट्स में होता है सोशल में, कि एक लाइन आइटम आती है, एक बजट हेड होता है। यहाँ पे आपके पास कोई बजट हेड लाइन आइटम नहीं है, आपको अपने हिसाब से पैसा यूटिलाइज करना है।
आप देखो कि आपको किस चीज पे वो पैसे की जरूरत है, कहाँ पे आपको वो पैसा लगाना है, कैपिटल बनाना है, उनका एसेट बनाने हैं, क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके। और ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी का एक फायदा ये होता है कि हम 13 महीने बाद मूव आउट कर जाते हैं, हम लोग तो मूव आउट करेंगे, मगर इस फंडिंग की वजह से थोड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन किसी भी प्रोजेक्ट में हो तो वो सस्टेन करता है। राइट। और फेलोशिप में आपको ये भी रहता है कि आप एक पुराने फेलो का प्रोजेक्ट भी उठा के आगे चला सकते हैं, वो भी ऑप्शन मिलती है आपको। दैट्स हम्म। इंटरेस्टिंग। तो आप पढ़ सकते हो पुराने फेलोज के प्रोजेक्ट्स वगैरह देख हाँ हाँ, सकते हो पूरे कम्युनिटी में। पूरे आपको साइट पे भी मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स ओके। वगैरह भी आपको साइट पे भी देखने को मिल जाएंगे, इवन प्रोफाइल्स भी देखने को मिल जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जब मान लीजिए आप जैसे फेलोशिप के अपने एंड स्टेजेस पे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे इनपुट तो वो आपको दे ही रहे हैं, मेंटरशिप है और अच्छे खासे मेंटर्स आते हैं हमारे। इवन एपीयू से भी एक प्रोफेसर थे हमारे मेंटर, अब उनका नाम मेरे को ऐसे याद नहीं, एजुकेशन के थे, तो वो भी एज अ मेंटर इन पैनल थे, वो आते थे। और एक हमारे ये प्रधान के वो थे फाउंडर मेंबर, उनका नाम मेरे को भी याद नहीं है, तो वो भी एज अ मेंटर आया करते थे। उन दोनों का एक तो एक्सपीरियंस, और जब वो मेंटरशिप उस पे जाते थे, वो क्या होता था कि यूजुअली जैसे हम ये सोशल सेक्टर में वैसे बातें करते हैं ना, तो यूजुअली लोग ना बड़ा शुगर कोट करके चीजें देते हैं आपको। और जब वो दोनों बैठते थे तो हमारे को पता होता था कि वे शुगर कोट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट रियलिटी चेक देंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला होता तो मुंह पे बोल देते थे, ये प्रोजेक्ट तो चल ही नहीं सकता आपका, ये कंपोनेंट्स हैं, ये इशू है, आप देखो। क्योंकि अब सभी आ रहे हैं बाहर से अपने प्रोजेक्ट, तो हम लोग तो एक वो होता है ना कि पहले आप थोड़ा रोमांटिसाइज करते हो चीजों को, फिर फैंटेसी के हिसाब से चलते हो कि हाँ ये हम करेंगे, आइडियल कंडीशंस बनाने की ट्राई करते हो। पर वो बोलते थे कि आइडियल कंडीशंस बाद में बनाना, पहले रियलिस्टिक होकर काम कर लो, बाद में आइडियल कंडीशंस बनाएंगे। तो उनके थ्रू मेंटरशिप का वो रहता है, स्कोप रहता है। और अलग से भी आपके काफी अलग अलग सेशंस भी करवाती है एसबीआई, इवन 2 रिव्यू भी होते हैं, उसके टाइम पे भी आपको बुलाया जाता है। और उस टाइम पे फेलोज भी आते हैं, कुछ वहाँ के एनजीओ एक्सपर्ट्स भी आएंगे, वो भी आपको इनपुट्स देंगे, आपको प्रोफेशनल करियर के लिए भी बहुत बेटर रहता है। हाँ, पर ये सोच के नहीं जाना चाहिए फेलोशिप में कि वो सरकारी नौकरी है, वो किसी टाइप की सरकारी नौकरी नहीं है, वो एक फेलोशिप अपॉर्चुनिटी है। और उसमें बेसिकली आपको खुद को डिस्कवर करना है कि आप करना क्या चाहते हो। ड्यूरेशन कितने महीनों का रहता है? 13 महीने का ड्यूरेशन होता है हमारा, और 2 बैचेस हमारे चालू होते हैं। एक का हमारा जो इंडक्शन होता है, एक अगस्त में हो जाता है, दूसरा इंडक्शन अक्टूबर में होता है। वो दूसरा अभी बैच अभी इसलिए अभी हम अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि एप्लीकेशन अभी ओपन है, तो अभी हाँ, अभी अगर एप्लीकेशन चाहें ओपन है, तो अप्लाई कर अगर सकते अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। हैं। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जब आप देखते हैं कि इस तरीके की लाइवलीहुड प्रॉब्लम हो रही है ग्राउंड्स में, हम्म, और एंटरप्राइजेस की पोटेंशियल है वहाँ पे क्रिएट करने का, सस्टेनेबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस जो काम कर रही हैं, या फिर बहुत सारे प्रोफ़ेशनल जो हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं, या फिर अपने मिड करियर में हैं, 2-3 साल हो गए हैं उनको, वो जाके हम्म, एंटरप्राइज़ बना तो देते हैं, क्योंकि उनको टारगेट बहुत बड़ा सस्टेन दिया नहीं जाता होता। है कि यू हैव टू क्रिएट हम्म, 800 एंटरप्राइजेज़ इन अ ईयर और समथिंग लाइक दैट। तो उनके पास एक टारगेट होता है, तो ये कॉर्पोरेटिश कल्चर एनजीओज़ में भी डेवलप हो गया है। कि आपको ये टारगेट हिट करना है, और वो टारगेट वो हिट करने के चक्कर में सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान उतना अच्छे से नहीं दे पाते हैं। हम्म। आपको क्या लगता है कि एज़ अ एक्सपर्ट आप किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं, और क्या लगता है कि अगर ये एंटरप्राइज़ है तो ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या-क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि किसी वर्किंग प्रोफेशनल को ध्यान में रखने चाहिए? जितना मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, मैं उसी हिसाब से आपको आंसर दे पाऊंगा। तो अगर आप देखें, आप सस्टेनेबिलिटी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम लोगों के सामने भी खड़ा होता है, और ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, ये एंटरप्राइजेस वालों के सामने हमेशा खड़ा रहता है। जो भी थीमेटिक एरिया में काम कर रहे हैं ना, लाइवलीहुड में या एंटरप्राइज में, ये सबसे बड़ा सवाल है जो वो खुद से पूछ रहे होते हैं। फंडर नहीं पूछता, वो हम लोग खुद से पूछ रहे होते हैं कि हमने यार इतनी बना तो दी, ये चलेंगी भी कि नहीं चलेंगी। तो उनको सस्टेन करने के लिए ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कांस्टेंट बेसिस पे जो आपस में कम्युनिटी, जितने भी हमने यहाँ पे मान लीजिए एंटरप्राइजेस क्रिएट किए हैं, चाहे 300 की हैं, 400 की हैं, जितने भी किए हैं, एक तरीके से इनकी कम्युनिटी बिल्ड करने की ट्राई करते हैं। जैसे होता है ना, व्यापार मंडल हैं आपके थोड़े थोड़े, ये जैसे आप भी देखते होंगे कि कमर्स चैम्बर्स हर उसमें डिस्ट्रिक्ट में बना रखे हैं आज तक। हुँ, हुँ। छोटी छोटी ऐसी इनिशिएटिव लेते हैं कि आपस में इंटरेक्ट करें। और क्या होता है कि जब आप इंटरप्राइजेस चालू करते हैं ना, आपको ज्यादातर 2 ही टाइप के इंटरप्राइज देखने को मिलेंगे। या तो आपको प्रॉपरली सिर्फ सर्विस वाले देखने को मिलेंगे, ब्यूटी पार्लर, सिलाई वाले, यही गांव देहात में यही 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई एक आधा निकला है, वो भी ऐसी कमोडिटी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा जो मार्केट में आप ले भी जाओ तो वो कम्पीट ही ना कर पाए, क्योंकि ना तो उतना स्केल है, ना तो उतनी कैपेसिटी, और ना ही कैश बन का उनके पास ऑप्शन है कि वो पैसा जला पाए मार्केटिंग में। तो वो सब चीजें नहीं है। तो हम लोग उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए या सस्टेन करने के लिए एक सिंपल सा मॉडल तैयार करते हैं। हम पहले बोलते हैं कि जी हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स दी उनको, सारी चीजें समझाई, फिर उनको ना बीच बीच में पूरी जो रियल कंडीशंस है वो दिखाते हैं। हम उनको ये नहीं करते कि किसी टाइप का सपना दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सबके दिमाग में वो टारगेट होता है, हम लोगों को भी पता है। हम उनको ये नहीं बोल रहे होते कि जी आप अंबानी बन जाओगे, आप ये बन जाओगे। हम उनको सिंपल सी बात ही कह रहे होते हैं, आप अपना धंधा चालू करो, मगर अगर आपको सस्टेन करना है तो कांस्टेंट एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। कनेक्शंस बिल्ड करवाते हैं उनके लगातार बेसिस पे, चाहे वो, क्योंकि
अब करंट ऑर्गेनाइजेशन का मेरा बेनिफिट ये है कि मल्टीपल लोकेशन है, ये बहुत सारी लोकेशन में है। और यहाँ पे क्या है कि इतना स्ट्रिंजेंट वो टारगेट वाला सिस्टम नहीं पकड़ के चलती है कि एसबीआई को अगर आगा लगता है खान कि भाई ये करना है नहीं करना है, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत बेटर उसमें चलता है कि टारगेट इतना स्ट्रिंजेंट नहीं पकड़, जितनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे ना वो अपने लिए स्टांस लेती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, थोड़ा फंडर हावी होता है आपके ऊपर, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हो, आपको फंडिंग भी चाहिए, आपको थोड़ा राइट वैसे भी फंडर से भी डील करना है, तो आपको थोड़ी फंडर की बातें उस पे भी। ये जब इतने स्केल पे हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए स्टांस भी लेती हैं और इवन बोलती भी हैं कि हम कम्युनिटी अगर हमारे को डेवलप करनी, किसी भी तरीके का हम कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं तो हमारे को टाइम तो चाहिए भाई साहब। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को बोलोगे 1 साल में 300 करके चले जाओ, वो नहीं होगा। होगा तो 5 साल का प्रोजेक्ट होगा। टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप खुद प्रोजेक्ट लिख रहे हैं और खासकर इंटरप्राइजेज या लाइवलीहुड का लिख रहे हैं, तो कम से कम मिनिमम 3 से 4 साल मांगिए, क्योंकि 3 से 4 साल से पहले अगर आप बोलें कि आप 1 साल या 2 साल में इसको सस्टेनेबल बना पाए तो वो पॉसिबल नहीं। गांव देहात की इंटरप्राइज को लंबा टाइम चाहिए होता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट बहुत चाहिए और बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए चाहिए। कई बार तो ऐसी ऐसी चीज के लिए आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना पड़ेगा जो आप सोचोगे कि यार ये तो कॉमन सेंस पे कर लेगा आदमी, मगर वो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप डील कैसे कर रहे हो, किस कम्युनिटी के साथ डील कर रहे हो, उनकी कैपेसिटी कितनी है ना। राइट तो हमारा सस्टेनेबिलिटी का मॉडल ये रहता है, हम इनके फोरम्स बनाते हैं, इनको मार्केट एक्सपोजर देते हैं और मार्केट एक्सपोजर भी एक्सटेंसिव देते हैं। ट्राई ये करते हैं कि अपनी लोकेशन से बाहर निकलें, यहाँ की लोकेशन से बाहर निकलें, और चाहे वो प्रोडक्ट है कोई भी सर्विस है ना, एक बेसिक लेवल की मार्केटिंग करना चालू करें। क्योंकि देखिए अगर मार्केटिंग करते हैं, कैश बन के बिना भी मार्केटिंग की जा सकती है। आजकल तो सोशल मीडिया इतनी ज्यादा वो बढ़ गई है कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू ही टारगेटेड मार्केटिंग करना चालू करें तब भी आप अपने इंटरप्राइज को सस्टेन कर पाएंगे। और ये हम लोगों को लगता है कि गांव देहात में ये नहीं चलता। अभी मैं हमारा तो ये रहता है कि हम लोग सारी ट्रेनिंग यहाँ पे करवा रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं, तो हम एक सवाल उन लोगों से पूछते हैं कितने लोग ये आजकल सोशल मीडिया टूल आपके इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, तो सबके हाथ ऊपर होते हैं, एक्सेस है इवन हर चीज का। यहाँ पे ये है कि आपके पास, आपको बस उनको उसको यूज करना सिखाना पड़ेगा। हमारा क्या होता है कि हम अपने वो जब इंटरप्राइजेस वालों का पकड़ के चलते हैं ना, एक तो बजट दिमाग में घूमता है कि ये है, इतना खर्चा करना है, ये करवा के निकलना है, इतने लोन करवाने हैं, इतने एसेट देने हैं, ये करना और साइड होना। उसके बीच में ये जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती है ना, कि आपको उनको डेवलप करना है, उनको नर्चर करना, और एक तरीके से एक इंक्यूबेशन जैसे सेंटर होता है ना, वैसे चलाना है अपने प्रोग्राम को, ना कि एक प्रॉपर वो लाइवलीहुड वाला के दिया किया और साइड, वो नहीं करना। एक इंक्यूबेशन जैसे चलती है ना, कि आप उसका इंसेप्शन से लेके एंड तक खड़े होने तक, तब तक आप उसके साथ हो, वैसे आपको रहना पड़ता है। मेहनत बहुत लेगा, कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अब आपका कुछ और चल रहा है, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, वो डिफरेंसेस आते हैं। पर उनको आप अगर धीरे धीरे बातचीत करो या चीजें समझाओ, प्रैक्टिकली बिठा के समझाओ, टाइम लेगा मगर समझेगा। ओके। ये और तो रही सस्टेनेबिलिटी की बात। एक चीज़ और है कि आपका एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं जब आप काम कर रहे थे फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग के साथ। हम्म, तो जो रूरल वुमेन्स थी वो स्केलेबिलिटी पे काम कर रही थी ताकि उनका हम्म, जो एंटरप्राइजेज़ है वो नैनो से माइक्रो तक जाए। तो हम्म। उसमें आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिला रूरल वुमेन्स और ये लोकेशन बेसिकली भी थोड़ा-सा बता दें कि ये लोकेशन था कहाँ? मेरा जो लोकेशन था, मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस थी असम और मेघालय की। असम में मेरे पास ईस्ट कार्बी आंगलोंग और दिमासा डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और अगर आप मेघालय की बात करें तो रिभोई और ईस्ट गारो हिल्स, ये ट्राइबल बेल्ट ही हैं। तो जी। यहाँ पे मेजोरिटी आपको दिमासा लोग, दिमासाओं में, ईस्ट कार्बी आंगलों में कर्बी लोग, रिभोई में अलग अलग कम्युनिटीज मिलती है, मगर खासी आपको प्रीडोमिनेटली मिलते हैं। गारो हिल्स में गारो गारो कम्युनिटी ओके। आपको मिलती है। तो आप अगर उनको यहाँ के उससे जोड़ के देखें, मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं, खासकर फीमेल्स हैं, काफी एम्पावर्ड हैं, अपने लिए डिसीजन लेने की उनमें क्षमता रहती है। और मतलब हमारे जैसे कुछ एरियाज के सोशल डायनामिक्स रहते हैं इंडिया में, वैसे नहीं है वहाँ पे। तो आपको उनकी लीडरशिप पे काम नहीं करना पड़ता, लीडरशिप या इनिशिएटिव लेने की उस चीजों पे वो खुद से लेंगे। जहां तक रही स्केलेबिलिटी की बात, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप ये सॉरी एंटरप्रेन्योर की तरफ से नहीं आ रहा होता। वो तो स्केल करना चाह रहा है। हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी लेवल पे नैनो एंटरप्राइजेस का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि नैनो एंटरप्राइजेस होती क्या है। वो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, क्योंकि मान लीजिए देखिए, आप कैपिटल इन्फ्यूजन सबसे बड़ी चीज है। कोई भी प्रोजेक्ट को आपको स्केल करना, आपको वर्किंग कैपिटल लानी पड़ेगी। हुँ, उसके लिए आपको लोन्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो, बैंक नैनो एंटरप्राइज को एक्नॉलेज ही नहीं करता। हुँ, हुँ। तो नैनो एंटरप्राइजेस का किसी भी टाइप का कोई भी, अगर आप देखें कि कोई उनकी ब्रैकेट बनाई गई हो, किसी टाइप का उनको एक्सेस टू क्रेडिट मिला हो, किसी टाइप का कोई सरकारी स्कीम का वो दे रहे हैं, कुछ नहीं है वैसा। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए बहुत सारी स्कीम है। स्केलेबिलिटी पे भी अगर सरकार वहां भी बात करती है तो ब्रैकेट रख देगी 50 लाख से 1 करोड़। हुँ, हुँ। ठीक है। अब हम यहाँ धंधे करवा रहे हैं, चालू हो रहे हैं, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख इससे ऊपर जा नहीं पा रहे हैं अभी स्टार्टिंग लेवल पे, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे और वो लोकल हैं।
जी। और अगर आप देखें पॉलिसी लेवल पे तो नहीं, मगर रिसर्च पेपर्स में बहुत बार नैनो एंटरप्राइजेस का जिक्र होता है। वहां पे बोला जाता है कि आपकी नैनो एंटरप्राइजेस हैं, ये इतना इतना इनका मार्केट कैप रहता है। 80% इंडिया की जो अगर आप देखें बैकबोन यही नैनो एंटरप्राइज बनाती हैं, मगर इनके लिए कोई पॉलिसी लेवल पे कुछ भी सिस्टम नहीं होता। वो हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है, पर वो नॉर्थ ईस्ट में निगेट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में वैसे निगेट होता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो अपने अपने हैं, मतलब मान लीजिए आप मेघालय में काम करते हैं, मेघालय में एक एंटिटी है प्राइम मेघालय करके, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की है। आई एम कोलकाता की तरफ से वो इंक्यूबेटेड है, मतलब सपोर्टेड है, पूरा उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल सब चीज़ें आई एम कोलकाता की तरफ से आती हैं, इवन फंक्शनिंग भी काफ़ी सारी चीज़ों में। तो वहाँ पे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं आपके पास। 5 लाख 2 लाख यहाँ से चालू होकर 1 करोड़ तक जाती हैं और नॉन रिटर्नेबल ग्रांट्स हैं। तो वहाँ पे बिजनेस स्केल करना मेरे लिए बहुत ईजी था। मेघालय में अगर मैं बिजनेस स्केल करवाना चाहता था तो बहुत ईजी था, और बहुत सारे बिजनेस को हम लोगों ने ऐसे स्केल भी करवाया। पर यही है कि मेघालय का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता था कि फार्म बेस्ड वो हैं कम्युनिटीज, हम्म। फार्म बेस्ड कम्युनिटीज है, वही प्रोडक्ट होंगे और वही हमारे को आगे स्केल करवाने हैं। उनकी स्केलेबिलिटी में चैलेंज आता है। मगर ये था कि प्राइम का सपोर्ट कह लीजिए, या उनकी तरफ से हमारे को थोड़ा बहुत ये मार्केट एक्सेस बहुत खुला दिलवाती है प्राइम आपको। हमने वहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ काम किया, अपने कनेक्शन बिल्ड किए, जहाँ पे हमारे को पता था ना कि हमारी लिमिटेशंस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए कोलैबोरेट किया लोगों के साथ, ये कोलैबोरेट करेंगे और आगे चलवाएंगे। स्केलेबिलिटी का वहाँ इशू नहीं आया। असम में स्केलेबिलिटी का इशू मेरे सामने बहुत मेजर था कि वहाँ पे अगर हम लोन भी लेने जाते थे तो बैंक्स भी डिनाई कर देते थे कि हम इस एरिया में लोन ही देंगे। ट्राइबल बेल्ट हैं, शेड्यूल 6 में आते हैं। शेड्यूल 6 के एरियाज में नियम कायदे कानून थोड़े अलग हैं। मेरे को नहीं पता आपके व्यूअर्स को पता होगा कि शेड्यूल 6 के एरियाज कैसे रहते हैं या उनके अंदर क्या चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कभी किसी शेड्यूल 6 के एरिया में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ कोर्ट्स भी दो दिखेंगे। एक ट्राइबल कोर्ट अलग दिखेगा, प्रॉपर ट्राइबल कोर्ट, एक आपको उनका जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट्स बनाए गए हैं वो अलग दिखेंगे आपको। और ऊपर से उनका जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो उनकी सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगी। वहीं से डिसीजन बनेंगे वो डिस्ट्रिक्ट को लेके, चाहे लैंड है, चाहे रेवेन्यू है, कुछ भी है। इवन वहाँ के जो इंटरनल जॉब्स हैं, जो नौकरियां भी वहाँ मिल रही हैं, उनके भी डिसीजन जो होता है वही वहाँ की काउंसिल्स ही लेती हैं। हर शेड्यूल 6 के एरिया में काउंसिल मिलेगी आपको। तो वहाँ के काउंसिल से अगर वैसे आप देखें तो उन एरियाज में बाहर की कोई एंटिटी आती है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एंटिटी है, वो लैंड नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे स्केलेबिलिटी मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था। मगर ये था कि वहाँ पे हमने स्केलेबिलिटी का लिए ना फिर एक नई चीज ढूंढना चालू किया। वहाँ के जितने सीएलएफ थे, सीएलएफ के पास फंडिंग बहुत, मतलब अपनी सेविंग्स बहुत ज्यादा थी। अगर मैं आपको मिनिमम बताऊं तो 10-15 लाख से उनका सेविंग्स का चैनल चल रहा था, कितना उनके पास है। तो हमने उनको टैप करना चालू किया। हमने बोला बाहर से कोई मिल नहीं रहा, यहीं पे टैप करते हैं और इन्हीं के थ्रू फंडिंग ऑप्शन दिलवाते हैं। क्योंकि देखिए एसेट प्रोक्योर करना, एसेट एक्वायर करना, रॉ मटेरियल एक्वायर करना ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। आज के टाइम पे आप इंटरनेट के यूज से बहुत इजीली ये चीजें, ये कनेक्शंस बिल्ड करके सामने वाले को दे सकते हैं। पर जब आप वर्किंग कैपिटल की बात करते हो ना, लेंड करने के लिए एक तो आपको एंटिटी नहीं मिल रही है, बिना वर्किंग कैपिटल के कोई भी इंटरप्राइज सस्टेन नहीं करता। जी। आपको किसी ना किसी टाइप का उनको बाद में इन्फ्यूजन देना पड़ता है। मगर वो आपको इन्फ्यूजन भी समझा के देना पड़ता है कि भाई कैश फ्लो देख के चलना, पैसा आ रहा है बिजनेस में तो ही आप पैसा लो, नहीं तो मत लो। बहुत सारी चीजें आपको मल्टीपल उसमें चैनल्स में साथ ही साथ चलानी पड़ती हैं। तो ये वाला जो थीमेटिक एरिया है ये थोड़ा टेक्निकल है, ट्रिकी भी बहुत है। यहाँ पे ये रहता है कि आपको हर चीज पहले तो कुछ समझनी पड़ेगी। अब हम लोग जैसे बैकग्राउंड चाह रहे थे, आप भी ये देखें तो एपीयू में कोई बिजनेस ऐसा जैसे थीमेटिक एरिया वाइज नहीं पढ़ाया जाता है कि आप बोलेंगे आप इंटरप्राइज उसमें जाना चाहते हो तो आपको इंटरप्राइज के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। आप वाटर एंड सैनिटेशन में जाना चाहते हो, कोर्सेज रहते हैं, आप कोर्सेज पिक करते हो। मगर वो भी ये होता है कि एक एक सेमेस्टर के कोर्स हैं, बाहर निकल के जो आपको सीखना है वो सीखना, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ रहते रहते सीखनी पड़ती हैं। अब ये सारी जो टर्म्स और ये सारी जो चीजें हैं, ये पहले मेरे को पता ही नहीं थी। फेलोशिप से पहले मेरे को आइडिया नहीं था कि भाई ये बिजनेस चलते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। फेलोशिप में सारी चीजें मैंने ट्रायल एंड एरर किया, जम के किया, जितना मैं कर सकता था सारी चीजें सीखी, और अब धीरे धीरे उन चीजों को आगे इस्तेमाल किया। आपका एक एक्सपीरियंस जो रहा है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट में भी रहा है। जी जी। तो एंटरप्राइजेस बिल्ड करने से लेके फिर हम्म। ई वेस्ट मैनेजमेंट में आपका स्विच कैसे हुआ फिर? ई वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसे आया जब मैंने फेलोशिप खत्म की। फेलोशिप खत्म करने के बाद ना हमारा एक नेटवर्किंग इवेंट होता है। मतलब फेलोशिप जब खत्म होती है तो उसके टाइम पे कुछ जो इंटरेस्टेड वो हैं, मतलब आप बोलें कि बिजनेसेस या एंटिटीज, एनजीओ वगैरह, उनको बुलाया जाता है। आप नेटवर्किंग करते हो, अगर आप कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहां से आप पिक करते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली वहीं उस नेटवर्किंग इवेंट से। तो उन्होंने बोला ओके। कि हमारा सोशल वेंचर है, आप यहाँ पे आके काम करो। हम भी अवेयरनेस पे काम करते हैं। उनका एक कंपोनेंट अवेयरनेस का भी था, जहाँ पे वो लोगों को ई वेस्ट के नुकसान, कैसे उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करें, कैसे कैसे उसका डिस्पोजन होता है, ये सारी चीजें भी कवर करते थे। तो हमारे को उनके अलग अलग विंग्स होते थे, अवेयरनेस वाले अलग हैं, कंज्यूमर अलग कोई हैंडल कर रहा है,
मेरे को मिला वहाँ पे बल्क कंज्यूमर, तो मैंने ज्वाइन किया फेलोशिप के बाद पहली जॉब अपॉर्चुनिटी में, चलो ठीक है। अब ज्वाइन तो मैंने कर लिया, मगर ये था कि वो प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप था। मंथली टारगेट्स आपके वो आपको पूरे करने हैं, उतना चलना है। टारगेट्स पूरे करने में इशू नहीं आता, मगर ना कहीं फिर वो जो आप फील्ड होता है ना, फील्ड को मिस करना चालू कर देते हो। कॉर्पोरेट ऑफिस में इंटरेक्शन बहुत कम है, आपके कलीग्स के अलावा आप देखोगे तो क्लाइंट के साथ भी क्या ही इंटरेक्ट कर लोगे आप। कितना इंटरेक्शन होगा, बैठोगे भी तो क्लाइंट भी आएगा, वो अपने काम की बात करेगा और जाएगा। आप कम्युनिटी के साथ बैठ के देखो, पूरी जिंदगी डिस्कस कर सकते हो आप बैठ के। ट्रू। हाँ, तो वो मैं मिस कर रहा था। वो मेरा मेरा सबसे छोटा असाइनमेंट था, मगर वहां से जो चीजें अपने को समझ में आनी वो हुई ना, मतलब जो वेस्ट का जो था सबसे बड़ा। अब क्या है कि आसपास कचरा आपको भी दिख रहा होगा कि आपके आसपास भी कचरा बहुत सारा है, हमारे को भी बहुत सारा दिखता था। उसके थ्रू मेरे को अलग अलग डायमेंशन पता चली कि हर एक जितने भी कचरे के सोर्सेज हैं, चाहे वो आपका, आप बोल लीजिए टायर बोल लीजिए, कोई मेटल बोल लीजिए, किसी भी टाइप का, हर चीज रिसाइकलेबल है, हर चीज रीयूजेबल है, हर चीज को आप दोबारा से रिपर्पस कर सकते हैं, है ना। उस टाइम पे जो एक्सपोजर वहाँ पे कॉर्पोरेट का वो तो चलो अलग था, वो वर्किंग एक्सपीरियंस अलग से, मगर जो वैसे देखें कि भाई वो चीजें होती कैसे हैं, है ना। तो वो मेरे लिए आगे सेवा में बहुत काम आया। सेवा ने मेरे को हायर किया। सेवा ने बोला हमारा प्लास्टिक वेस्ट की यूनिट है, आपको ये हैंडल करनी है, पूरा आपको सप्लाई चेन से लेके सारी चीजें बनानी है। सेवा के साथ मैंने जब काम चालू किया तो वहाँ पे सप्लाई चेन वगैरह सब तो बन गई। मालवीय की सेवा का बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमको मटेरियल लेने में भी दिक्कत नहीं। पर अब ये तो ऑपरेशन कैसे सस्टेन करें, एंड तो चाहिए ना आपका। एक तरीके से हम बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि वो कॉपरेटिव थी जो सेवा ने खोली थी। वेस्ट पिकर्स को मिला के एक कॉपरेटिव खोली गई थी, शिवकारी सिद्धि करके नाम था उसका। जी, जी, तो नाम सुना है। उसमें हाँ, उसमें इशू क्या आता कि जो कॉपरेटिव आपने बना ली, प्रोसेसिंग चलने लगी, यूनिट आपकी सेटअप है, मटेरियल भी आप सेग्रीगेट करके रख रहे हो, पर लास्ट में आप करोगे क्या उसका, जमा तो करोगे नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो वो मेरे कॉर्पोरेट के बने हुए कनेक्शन मेरे यहाँ काम है, जो रिसाइकलर्स के साथ मेरे कनेक्शन बने हुए थे वो मेरे यहाँ काम है। फिर एंड उनकी वैल्यू चेन कुछ सब बनाना कि भाई कहाँ जाएगा, किसके पास पहुंचाएंगे, क्या क्या इसमें हमारे को देना पड़ेगा, क्या क्या उनको देना पड़ेगा, सारे सिस्टम सेटअप वहाँ पे किए। वहाँ पे मतलब फुल स्केल एक बड़ी यूनिट का ऑपरेशन सिंगल हैंडली कैसे चलता है, वो मेरे को एक्सपीरियंस गेन हुआ वहाँ आपने अपने जर्नी को डिस्क्राइब किया, ठीक है, पे। आपने अपना कंट्रीब्यूशन वगैरह बताया, पर्सनल ग्रोथ के हम्म, बारे में बताया। एक हम्म, अगर एडवाइस आपको देना हो न्यू कमर्स को, चाहे वो हम्म, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हों, चाहे वो टिस से निकल के आ रहे हो या बीएचयू से हो या टाटा धाम से हो, किसी भी सोशल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं अगर और फील्ड में काम चालू करना चाह रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ, किसी भी स्टार्टअप के साथ, तो हम्म। क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे न्यू कमर्स को आप? ये मैं सारे ही उनको एक ही चीज बोलता हूँ। अभी जो मेरे साथ कुछ लोग वैसे भी ज्वाइन करते हैं, बाद में भी ज्वाइन किया, उनको मैं सेम चीज बोलता हूँ, अपनी एस्पिरेशंस मैप करके आओ पहले से। आप अपनी एस्पिरेशंस को पहले अच्छे से समझो कि आप चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो, तब इस सेक्टर में आओ, क्योंकि ये सेक्टर ना आपको दोनों चीजें दिखाएगा, बहुत अच्छा भी दिखाएगा, बहुत बुरा भी दिखाएगा। सोशल सेक्टर में दोनों एक्सट्रीम है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है। दोनों एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आप अपनी एस्पिरेशंस मैप करो, आप सोचो कि आप इस सेक्टर के लिए बने भी हो, रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तब आओ। एक बार आपके एस्पिरेशन सेट है, उसके बाद तो एक सिंपल सी एडवाइस है, जो भी काम करो मौज करो, बस उसमें आराम से काम करो, मजे लेके काम करो उसको। ये नौकरी को नौकरी की तरह ना सोचो, ये सोचो क्योंकि ये सेक्टर आपको इतनी फ्रीडम देता है कि आप यहाँ पे जाके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर रहे हो लोगों के साथ। आपकी एक तरीके की अलग से मतलब एक घर वाला हिसाब हो जाता है कम्युनिटी के साथ थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, है ना। तो आपको वो फ्रीडम मिलती है। तो आप अपने काम में मजे लेके आपस में बैठ के मौज में भी काम कर सकते हो। वो नहीं है कि हाँ सिर पटक के 9 से 5 की नौकरी करनी है, अपना सिर रो के भाई ये मेरे को टारगेट पूरा करना है, ये करना है, वैसा नहीं रहता है इस सेक्टर में। पर ये है कि अपनी एस्पिरेशन मैप करके आओ, क्योंकि सर्टेन चैलेंजेस हैं, कुछ चीजें हैं जो इस सेक्टर में आपको पता है कि फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू वो रहते ही हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा इशू रहता है, एस्पिरेशंस बहुत हाई होती हैं, मगर ये होता है कि यहाँ पे उतना उनको नहीं मिल पाता, तो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बिल्डअप होना चालू हो जाती है। काम का कोई ऐसा नहीं होता कि रॉकेट साइंस नहीं है, काम हर कोई करते करते सीख जाता है। धीरे धीरे आप करना चालू करोगे, आपके साथ इतने सारे एक्सपीरियंस लोग होंगे, मगर आप चीजें उठाओगे। पर आपको ना एक सिंपल सी बात की खुशी मिलती है, जब आपके किए हुए काम से कोई और खुश होके जाता है ना, आपको तब मजा आएगा। आप देखोगे कि आपने किसी का कुछ भी, किसी भी आपके प्रोग्राम में है, कुछ भी है, कोई बेनिफिट मिला ना, सामने वाला अगर हंसता हुआ निकलेगा ना उस मीटिंग से, तो आपको खुशी होती है कि चलो भाई कुछ तो लेके गए हैं यहाँ से। वो आपको यही मिलेगा, कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगा वो आपको। कॉर्पोरेट में रोते हुए आदमी जहाँ दिखेंगे बाहर जाते हुए, यहाँ आपको थोड़े हंसते खेलते हुए जाते दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको फ्रीडम ज्यादा मिलेगा उस चीज में। सिंपल सा वो ये है मेरा, मौज में रहो, अपनी एस्पिरेशन मैप करो और अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। एस्पिरेशंस मैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी न्यू कमर्स को मैंने भी देखा है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको लाइवलीहुड बस एक डोमेन पता है कि लाइवलीहुड में काम करना है, लेकिन क्या काम करना है वो पता नहीं है। कभी एक ऑर्गेनाइज़ेशन में जाएँगे वो किसी एक चीज़ पे काम कर रही होगी, फिर वो स्विच करेंगे दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन में अच्छा नहीं लगता है उनको, काफ़ी फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन में, फिर उनको समझ में आता हम्म, है ये ऑर्गेनाइज़ेशन तो इस पे काम कर रही है, इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है अब हमको। तो एट द एंड क्या होता है कि एक पीरियड गैप बन जाता है जब वो
कहीं नहीं काम कर रहे होते हैं, जब वो बैठ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। तो इस चीज़ को पहले सोचना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि आप बाद में जाके परेशान ना हो? नहीं, देखिए इस चीज़ को पहले ही सोच लेना चाहिए। आपको ऐसा तो है नहीं कि आज तो ये पहले का टाइम आप बोल सकते थे कि पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेने में या ढूँढने में दिक्कत थी। अब तो मान लीजिए जैसे आप ये चैनल चला रहे हो, बहुत सारे और भी अलग-अलग एवेन्यूज़ हो गए जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो, जानोगे वो चीज़ क्या है। और जहाँ तक आप वो स्विच की बात कर रहे हो, मैंने अपने करियर में मैंने खुद ने बहुत स्विच किए हैं। अगर आप मेरा करियर उठा के देखो, मैंने बहुत स्विच किए हैं। मेरा स्विच करने का कारण एक ही था, वहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ रखी हुई थी। वहाँ से जितना मेरा टेन्योर है, उतना काम करेंगे, जितना सीखना उतना सीखेंगे, जितना कंट्रीब्यूट कर पाएँगे उतना करेंगे। पर ये है कि पहले पूरे सेक्टर को कवर करेंगे, समझेंगे कि अलग-अलग चीज़ों में होता क्या है। मैंने इसीलिए इतनी सारी डिविजन्स में काम चलाया है कि जहाँ पे मेरे को जो चीज़ उठाने को मिले, जितना चीज़ सीखने को मिले, वही चीज़ें आज की प्रेज़ेंट जनरेशन को करनी चाहिए। स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्विच करो। पर ये है कि आप वहाँ से कुछ उठाओ भी और कुछ दे के भी आओ। आप किसी जगह अगर मान लो एम्प्लॉयी हो तो कुछ कंट्रीब्यूट करना आपका भी बनता है, किसी ने आप पे चांस लिया है, आप कंट्रीब्यूट करो उस चीज़ को लेके। मगर वहाँ से जितना आप उठा सकते हो पर्सनल उसके लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वो भी उठाओ। स्विच भी करो, पर ये है कि माइंडफुल रखें। आपकी अगर एस्पिरेशन उस जगह से मैच हो रही है, आप कंफर्टेबल हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर नहीं एस्पिरेशन मैच होती हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे को बेटर वो चाहिए तो वैसे हो। सोशल में सबसे बड़ा इश्यू ये है कि बच्चे बिना सोचे समझे आ जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता लग रहा कि हम जिस काम के लिए आ रहे हैं, उसके लिए हमारे को बाहर निकलना पड़ेगा। वो ये ऑफिस जॉब ही समझ के आते हैं कि हम ऑफिस में बैठेंगे, वही काम करेंगे। उनको ये नहीं पता होता कि फील्ड इंटरेक्शन यहाँ पे चाहे आप 60 साल के हो जाओ, तब भी करना पड़ेगा आपको। जी। क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो बेसिक चीज़ है, बहुत समझना बहुत उनके लिए ज़रूरी होता है। मैं कभी सारे हमारे क्योंकि आजकल फेलोशिप का आपने वो किया, तो मैं आपको एक वो बताता हूँ, ये आगा खान भी आजकल एक अपना एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चला रही है। आरंभ थोड़ा करके उसका जानकारी नाम है। देंगे इसके बारे में? आरंभ अभी शुरू किया है रिसेंटली, अभी फर्स्ट बैच हमारा कंप्लीट हुआ है आरंभ का, तो वो भी एक डेवलपमेंट अप्रेंटिसशिप की तरह ही है। और उसका भी जैसे आप देखेंगे आपको 6 महीने आगा खान की एक लोकेशन पे आपको पोस्ट कर दिया जाता है। एक मेंटर असाइन होता है और हाईली एक्सपीरियंस मेंटर असाइन होता है, जो आपको बहुत सारी जो वहाँ की वर्किंग है, इवन चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है, फील्ड वर्किंग है, उन सब चीज़ पे आपको इनपुट देता है। पर आपको क्या है कि रियलिस्टिकली वहाँ पे छोड़ दिया जाता है उस टाइम पे 6 महीने के लिए। आपको कुछ टास्क दे दिए जाते हैं, आपको उन्हीं के ऊपर फोकस करना होता है, ना कि आपका ये ऑफिस और वो सारी चीज़ें। तो वो सिर्फ बैठ के आपको ऑब्जर्व करनी होती है। तो एक तरीके से जो रियल लाइफ वो होता है ना कि एक एनजीओ में काम कैसे होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं काम कैसे होगा, फील्ड पे कैसे काम होता है, क्या-क्या चीज़ें हैं। और वो 6 महीने के बाद कोई फोर्स वो नहीं है कि आपको कंटिन्यू करना है, वो आपकी इच्छा है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी एस्पिरेशंस नहीं मैच होती हैं तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। मगर ये है कि वो एक तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो वो भी अभी थोड़े टाइम पहले एकेआरएसपीए ने भी शुरू किया, अभी सेकंड बैच, अभी तो शायद एप्लीकेशंस क्लोज हो गई होंगी। मगर अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपके अगली बारी चैनल के साथ उनको टैग कर दिया करूँगा जब भी हमारी वहाँ से निकला करेगा कुछ भी ओपनिंग इसकी आरंभ को लेके। तो वो बहुत अच्छी ज़रूर। अपॉर्च्युनिटी है बच्चों के लिए सीखने के लिए। हुँ, हुँ। उसमें आते हैं कई सारे बच्चे आते हैं तो हम लोग उनको देखते भी हैं। कइयों के एस्पिरेशंस मैच करते हैं, कइयों की नहीं करती हैं। तो वो अ, एक नीचे हाँ, चैलेंज है। अभी अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वैसा कुछ डेट मेंशन नहीं है बट जो जो रीसेंट कोहॉर्ट है वो जनवरी से स्टार्ट हो गया था और हुँ, हुँ, जो हुँ। अप्रेंटिसशिप रोल है उसका नाम है हुँ, डेवलपमेंट ट्रेनी हाँ। 35,000 की स्टाइपेंड है और वंस यू हुँ, कंप्लीट योर 6 मंथ्स टेन्योर तो फिर आपको वो अब्ज़ॉर्ब कर लेगी ऑर्गेनाइज़ेशन एंड यू विल गेट हुँ, 40,000 एंड स्टार्टिंग पर मंथ हुँ। और सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी है इसमें। हाँ, काफ़ी रिगरस चीज़ें सीखने मिलेंगी आपको, अलग-अलग लोकेशन भी है, बिहार है, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ये सिर्फ प्रोफेश ऊपर-ऊपर की लोकेशंस हैं, मगर एकेआरएसपीआई का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप ये चीज़ आगे बता रहे हैं, तो इसमें एक बेसिक चीज़ याद रखिए कि रहना आपको बेसिक पूरे कोर गाँव में ही पड़ेगा। चाहे आप हुँ, किसी भी लेवल पे हो। एचओ का थोड़ा अलग है क्योंकि एचओ वालों को फंडर के साथ डील करना होता है और उनकी इंटरेक्शन अलग रहेगी, तो हेड ऑफिस हमारे को हमेशा एक हुँ, सिटी में रखना पड़ता है। मगर जितने भी हमारे एसएसटीज़ हैं, इवन हमारे वर्किंग एरियाज़ में, वो कोर गाँव में हैं। पूरे मतलब आप बोलेंगे एक तरीके से बैकवर्ड लोकेशन। हुँ, तो वहीं पे रहना पड़ता है। तो वो आप एक तरीके से जब आप ये आगे वो करें तो बोल दीजिएगा क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि वो देख तो लेते हैं, वो लोकेशंस पिक करते हैं, पर फिर जब ऐसी बैकवर्ड लोकेशंस मिलती हैं तो 2 दिन में भाग जाते हैं। राइट। काफ़ी ज़्यादा हमको लग रहा है कि हर एक एस्पेक्ट जो है हमने कोशिश किया कवर करने का और काफ़ी डीप डिस्कशंस हुआ है, काफ़ी अच्छे से आपने बताया अपना एक्सपीरियंस, अपना वर्क। ऐसा कुछ चीज़ है जो हमने छोड़ दिया डिस्कशन में जिसको आपको लग रहा है कि यू वांटेड टू प्रेज़ेंट कुछ? नहीं, आपने मेजॉरिटी चीज़ें सारी ही कवर कर ली हैं। इतना कुछ ख़ास अभी तक मैंने किया नहीं है जी, अभी तो बहुत लंबा वो है करियर है, जितना आगे रहेगा करते रहेंगे। अभी तो ये है कि 4 साढ़े 4 साल का जितना एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया, उतने उस हिसाब से जितना मैं बता सकता था मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। बाकी कवर आपने सब कर लिया है, कुछ नहीं बचा है। अगर आपकी तरफ से कुछ आपको लगता है कि हाँ, पेंडिंग है, कुछ और आपको पूछना है या कुछ और चीज़ पे सवाल है तो कुछ जो भी व्यूअर्स रहेंगे अगर कुछ कमेंट करते हैं या कुछ क्वेश्चन रहेगा उनका तो हम ये जी, कोशिश करेंगे कि आपको पास ऑन कर दें, ठीक है ठीक जी। है? और बाकी जी, हमने सारा चीज़ कवर कर लिया है, तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड गिविंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स।